Hello, happy students. Today our topic is Python programming, and this is Python programming part 2. In this lecture, we are going to discuss about some concept related to Python programming. So, first one is Python statement. What is Python statement? Python statement are basically the instruction that a Python interpreter can execute. So, Python instruction that a Python interpreter can execute are called a statement. For example, a is equal to 1. A equal to 1. It means that as we know that this is assignment operator and 1 is assigned to A. So that is a complete, that is known as a statement, assignment statement, because in this statement we assign a value 1 to a variable A. In this manner, some other statements are if statements, for statement, and while statement. These all are the statements. So these are the Python statements. Next is multi-line comments. In Python, end of a statement is marked by a new line character, but we can make a statement extended over multiple lines with the line continuation character. So that is a line continuation character over slash. So we can use this line continuation character. It means line is continue. In this example, we can easily see that this is a simple example here. 1 plus 2 plus 3. If you want to add 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, then we can write it in a single line. But here three different lines are here, and using line continuation character, multiple line can be combined into a single statement. So that is a line continuation character. It means after the completion of the statement in a single line, then we use forward slash. After that, whatever you write in next line, it is a part of first line or related to a first line. That is a multi-line statement. Next, you can also write multi-line statement using a parenthesis sign. So here is a parenthesis sign. Parenthesis sign. So whatever we write within parenthesis is considered as a single statement. And we can also put multiple statement into single line using semicolons. So this is a statement in which A is equal to 1, B is equal to 2, and C is equal to 3. The most important thing is in this statement is A is equal to 1. A equal to 1. After that there is a sign of semicolon, and then after B is equal to 2, so this is a statement written in a single line, but it means they are two different lines. Actually, semicolons work as a statement terminator. So whatever we write after semicolon, it considered as a new line statement. In this line, we can easily see that A is equal to 1, B is equal to 2, and C is equal to 3. So there is a single line statement and contain different multiple statements. So these are the multiple statement representation in different format. मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट मैं अभी आपको देखा, आपने समझ में आ गया होगा आपको। तो ये फर्स्ट मेथड है। सबसे पहले लाइन कंटिन्यूशन कैरेक्टर से डिफरेंशिएट करते हैं इसको। लाइन कंटिन्यूशन कैरेक्टर जब कभी भी लगाएंगे तो इट मीन्स वो एक ही लाइन है और उसमें कंटिन्यूशन है, तो चेंज नहीं है। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, तो लाइन कंटिन्यूशन कैरेक्टर है। ऐसे ही इसमें हम देखेंगे, अगर हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे तो वो भी
कंटिन्यूशन में रहता है। और कभी भी आप अगर सेमी कॉलन लगाते हैं तो सेमी कॉलन स्टेटमेंट के बाद लगाने का मतलब है स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। उसके बाद अगर आप कुछ स्टेटमेंट लिखते भी हैं तो वो एक न्यू लाइन कंसीडर किया जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। C++, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेट के लिए यूज़ किया जाता है। पाइथन में ये ऑप्शनल है, सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए नहीं लगाते, पर जैसे अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, हमने सेमी कॉलन लगा दिया तो इंटेंशनली हम ये बता रहे हैं कि ये एक स्टेटमेंट है और इसके बाद जो लिख रहे हैं वो दूसरा स्टेटमेंट है। B=2 दूसरा स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, A=1 फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो ये आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट इज पाइथन इंडेंटेशन। So most of the programming language like C++, Java use braces to define a block of code. Python use indentation. जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, चाहे वो C हो, C++ हो या Java हो, सभी के अंदर हम एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखने के लिए आपका ये कर्ली ब्रेसेस का साइन यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो भी कुछ लिखा जाता है, स्टेटमेंट जो भी कुछ लिखे जाते हैं, जैसे मैंने लिखा कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर A=1 लिखा, B=1 लिखा, तो ये एक आपका ब्लॉक बन गया। अब जब ये एक ब्लॉक बन गया तो ये ब्लॉक एक बार में किसी भी कंडीशन के साथ, जो भी कंडीशन इसके ऊपर दे रखी होगी कर्ली ब्रेसेस के, उसके साथ ये एग्जीक्यूट होगा, जिसका भी ये पार्ट हो गया। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ब्लॉक लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस का हम ये यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या यूज़ करते हैं, हम इंडेंटेशन यूज़ करते हैं, हम स्पेस यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है और ईजी भी है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से समझना, क्योंकि उससे कोड की विजिबिलिटी बढ़ती है आपकी। तो ये हम फंक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं, हम लूप के अंदर यूज़ करते हैं इसको। और नेक्स्ट है इसमें जनरली 4 वाइट स्पेसेस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 वाइट स्पेसेस आर यूज्ड फॉर इंडेंटेशन एंड इट इज़ प्रेफर्ड ओवर टैब्स। तो हम टैब को कभी प्रेफर नहीं करते इसके अंदर, हम इंडेंटेशन को प्रेफर करते हैं। हम 4 वाइट स्पेसेस को प्रेफर करते हैं, जिसके थ्रू हम इंडेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। द इन्फोर्समेंट ऑफ इंडेंटेशन इन पाइथन मेक्स द कोड लुक नीट एंड क्लीन and this result into Python program that looks similar and consistent. And last point is indentation can be ignored in line continuation, but it's a good idea to always indent. It makes the code more readable. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, there is an example, small example here. अब यहाँ पर देखिए if true है और आपने स्पेस दिया and then after फिर आपने स्पेस दिया, अब ये एक ब्लॉक बन गया। लेकिन अगर आप यहाँ इफ के बाद अगर स्पेस नहीं देंगे, प्रिंट के बाद आपने स्पेस दिया, हेलो लिखा, और इस स्टेटमेंट को इफ की कंटिन्यूशन में लिखेंगे, लाइन में लिखेंगे, तो फिर यहाँ पर ये स्टेटमेंट और ये दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट हो जाएंगे, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तक ये सिंगल ब्लॉक के अंदर लिखेंगे ये एक कोड का पार्ट होंगे, लेकिन जैसे ही आपने इसको डिफरेंट लिखा, लाइन में लिखा, तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे, एक दूसरे से इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो ये एक पॉइंट था। अब यहाँ पर इसी तरह को लिखा गया है, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये E=5, यहाँ स्पेस नहीं हुआ, और इसको अगर हम सिंगल लाइन स्टेटमेंट के अंदर लिखें तो इफ़ ट्रू प्रिंट हेलो A=5 लिखा जाएगा, जब यहाँ स्पेस नहीं हुआ तब। तो ये एक थोड़ा सा था इसमें अंदर। तो ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, दोनों एक ही तरीके से, दोनों एक ही कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इन 2 डिफरेंट स्टाइल्स और मैनर ऑफ फॉर्मेट। तो अगर आपने इनकरेक्ट इंडेंटेशन दिया तो फिर वो इंडेंटेशन एरर दिखाएगा, एरर शो करेगा, जैसे आपने इसके अंदर लिया है, एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर, तो ये है, याद रखिएगा, अगर इनकरेक्ट इंडेंटेशन लेते हैं तो वो इंडेंटेशन एरर शो करता है। पाइथन कमेंट, व्हाट इज कमेंट? कमेंट आर बेसिकली डेड स्टेटमेंट्स। तो डेड स्टेटमेंट्स होते हैं, और डेड स्टेटमेंट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होते। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते तो फिर हम कमेंट क्यों लिखते हैं? तो कमेंट लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम कोड को रीडेबल बना सकें, कोड को समझा सकें किसी अदर पर्सन को कि उस कोड का क्या मायने है और कोड में जो लिखा गया है उसकी क्या बेसिक फंक्शनैलिटी है,
तो इसलिए कमेंट लिखे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी बोला जाता है कमेंट लिखने को। तो कभी भी आप प्रोग्राम बनाएं तो हमेशा उसके अंदर कमेंट लिखें जो अदर पर्सन को ये समझा सके कि उस कोड का क्या बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव समझाने के लिए कमेंट को लिखा जाता है। अब कमेंट की जहाँ तक बात है तो कमेंट आपके टू टाइप्स के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का सिंबल है हैश। तो हैश के बाद आप जो भी कुछ लिखेंगे, वट एवर यू राइट आफ्टर हैश इज कंसिडर टू अ डेड स्टेटमेंट। तो वो इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देगा। तो ये हैश सिंगल लाइन कमेंट है। लेकिन कभी कभी कमेंट एक से ज़्यादा लाइन के अंदर होते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको एक मेथड तो ये है कि नेक्स्ट लाइन में भी आप हैश लिखें, क्योंकि कमेंट का कंटिन्यूशन नहीं रहेगा। तो आपको हर बार हैश न्यू लाइन के अंदर लिखना होगा। लेकिन एक शॉर्टकट और इसका, जिसे हम मल्टीपल कमेंट बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट भी बोलते हैं। मल्टी लाइन कमेंट में आपको क्या करना है कि ये सिंबल है मल्टी लाइन कमेंट का, तो उसमें हम मल्टी लाइन कमेंट में ये कर सकते हैं कि हम ट्रिपल कोट के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे और ये यहाँ भी जाके क्लोज होगा, वो कमेंट माना जाएगा। जैसे आपने ए लिखा या बी लिखा, अब जो भी कुछ आपने इसके अंदर लिखा है ये कमेंट है, ये डेड स्टेटमेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है इंटरप्रेटर के लिए। इंटरप्रेटर इसे जस्ट इग्नोर कर देगा। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स हैं, मल्टीपल कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स लोकेशन इन मेमोरी यूज टू स्टोर सम डेटा। वेरिएबल्स बेसिकली डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और वेरिएबल को वैल्यू जो असाइन की जाती है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से की जाती है। असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन है, आप सभी जानते हैं इसको। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने, a इज इक्वल टू 5 लिया। तो बेसिकली a को हम ये कह सकते हैं कि a को 5 की वैल्यू असाइन होगी, हमेशा असाइन लेफ्ट टू राइट होता है आपका। उसके बाद b इज इक्वल टू 3.2 लिखा आपने, तो 3.2 असाइन हो गया आपको b को। उसके बाद आपने लिखा c, तो c में आपका यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है आपका हेलो, कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है। अब 3 डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं। यहाँ पर एक वर्ड आता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप का मीनिंग होता है व्हाट टाइप ऑफ डेटा है, डेटा का क्या टाइप है, डेटा कैसा है। डेटा इंटीजर हो सकता है, डेटा फ्लोट हो सकता है, मीन्स उसमें डेसिमल आ सकता है, डेटा स्ट्रिंग हो सकता है, मीन्स सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं। तो अब जो डेटा टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो डेटा टाइप को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप 3 डेटा टाइप्स को समझ लीजिए, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। ये यूज़ होने वाले हैं सभी, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में ये यूज़ होती होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 असाइन होगा ए को, देन 3.2 असाइन होगा बी को, एंड देन आफ्टर हेलो इज असाइन टू सी। सो देर आर 3 डिफरेंट असाइनमेंट यूज्ड इन दिस वैल्यू असाइन 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। देन नेक्स्ट लाइज मल्टीपल असाइनमेंट। क्वेश्चन माइंड में आता है कि इज इट पॉसिबल दैट वी कैन असाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू टू डिफरेंट वेरिएबल्स इन ए सिंगल स्टेटमेंट। आंसर इज यस, ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम एक लाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब यही असाइनमेंट अगर हम एक सिंगल लाइन के अंदर करना चाहें तो हमें कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ए, और हम लिखेंगे यहाँ पर ए कॉमा बी, जैसा आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, सी, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर 5, और आपने लिखा 6, 7। देन एक्चुअली आपको ए को 5 वैल्यू असाइन हो जाएगी, बी को 6 असाइन हो जाएगी, और सी को 7 असाइन हो जाएगी। इसी ऑर्डर में असाइनमेंट होगा आपका। तो यहाँ स्क्रीन पर एक सेकेंड एग्जाम्पल और है, आप इसको भी देख सकते हैं आसानी से, ए बी सी। तो यहाँ पर ए को 5 असाइन हुआ, बी को 3.2 और सी को हेलो। तो 3 डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़, डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ असाइन की गई हैं 3 डिफरेंट वेरिएबल्स को। ए बी सी 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका, अगर हम एक सिंगल वैल्यू असाइन करना चाहें 3 डिफरेंट वेरिएबल्स को, तो क्या वो पॉसिबल है? यस, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इफ यू वांट टू असाइन सेम वैल्यू to different types of variables, so it is also possible. Just write x, then equal to y, then equal to z. Equal means there is assignment operator here, and then value. Suppose value is a string, or for our
our convenience, we can take here a number 5. So what happens actually, assignment is from left to right, so 5 is assigned to Z, and after that value of Z is assigned to Y, and after that value of Y is assigned to X. So overall we can say that 5 is assigned to X, Y and Z, and value of X, Y, Z after that statement are 5. तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, एक लाइन के अंदर असाइनमेंट भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड हैं। आप दोनों में से ये पहला जो मेथड था इसमें मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन की गई थी, सेकंड एग्जाम्पल में सेम वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन की गई, तो डिफरेंस है दोनों में। मल्टीपल असाइनमेंट के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे आउटपुट बेस्ड, और इसको और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, और अगर आप वो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको लॉजिक क्लियर है और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है। नेक्स्ट है पाइथन ऑपरेटर्स। तो व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस। तो ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिक्स ऑपरेशंस या लॉजिकल मैनिपुलेशन में जो बेसिकली डिवाइड किया गया है ऑपरेटर्स को, तो ये कैटेगरीज निकल के आती हैं यहाँ पर: अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं, सभी को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। एंड रेस्ट 3 आर आइडेंटिटी, बिटवाइज एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। लेट अस टेक देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, arithmetic operators. As the name suggests, arithmetic operators. So these operators are basically used for arithmetic calculations. So plus, minus, multiply, divide, modulo division, exponent, these all are the arithmetic operators. Most of them are similar or same as used in mathematics, but some few are different in Python, as this for multiplication sign or division sign also, and this is exponent and this is modulo division, not generally used in mathematics. तो ये सभी ऑपरेटर्स हैं। तो ये ऐसे ही वर्क करते हैं जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में जो इनका वर्क है वही इनका जनरली मैथमेटिक्स में भी वर्क रहता है आपका। तो आपको ऐसे ही करना है। अब आप देख सकते हैं इसमें, तो ये a इक्वल टू, आपने लिखा a इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। आपने देखा यहाँ पर ये एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर है। a को 5 वैल्यू असाइन हो गई, b को 6 वैल्यू असाइन हो गई, और इसके बाद आपने लिखा c, तो आपने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस b। तो एक्चुअली a और b ऐड होकर c को असाइन हो जाएगी ये वैल्यू। तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये साइन यूज़ करना पड़ेगा, स्टार का साइन यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद डिवीज़न, मॉडुलो डिवीज़न, एक्सपोनेंट, डबल स्टार एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये मॉडुलो डिवीज़न से आप फैमिलियर होंगे, आई थिंक सभी जानते होंगे। मॉडुलो डिवीज़न बेसिकली रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने 5 मॉडुलो डिवीज़न 2, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो आंसर 1 आएगा इस केस में। जबकि अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो इस केस में आंसर 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और इसी तरीके से अगर आप एक्सपोनेंट को देखते हैं, तो एक्सपोनेंट में जैसे आपने लिखा 2 डबल स्टिक 3, तो इसका मीनिंग होगा 2 पावर 3, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 आएगा आंसर इस केस में। तो इस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। अब आपको करना ये है कि अगर आप इन ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटी को समझना चाहते हैं, तो आप पाइथन में इंटरेक्टिव मोड में जाइए और डिफरेंट ऑपरेटर्स पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखिए कि क्या आंसर आ रहा है आपका। तो आपको करना ये है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आपने लिखा जैसे 2 + 3, तो आंसर आ जाएगा 5 यहाँ पर। और इसी तरीके से आपने यहाँ लिखा 2 - 3, तो आंसर आ जाएगा -1।
तो इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो डिवीज़न और एक्सपोनेंट ये करके देखना है, तो आपको सभी आंसर पता चल जाएगा और इसकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, लेकिन ये एक्चुअली वैल्यू असाइन करने का काम करता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर a इक्वल टू 1, तो इट मीन्स 1 इज़ असाइन टू a। इसका मीनिंग ये है कि 1 a को असाइन हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैंने स्टेटमेंट लिखा a इक्वल टू 2, तो इसका मीन 2 इज़ असाइन टू a, तो ओवरराइट हो जाएगा। लेटेस्ट वैल्यू हमेशा कंसिडर की जाती है इसके बाद। तो डिफरेंट वैल्यू थी, पहले a की वैल्यू 1 असाइन थी, उसके बाद 2 असाइन कर दी, तो अब 2 a की करंट वैल्यू 2। अगर आप प्रिंट कराएंगे इस स्टेज पर तो a की वैल्यू 2 शो करेगा, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू शो करता है, प्रिंट करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे हम एक स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू a प्लस 5। अब आपने इसमें ये देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर है और यहाँ प्लस ऑपरेटर है और दोनों तरफ एक ही वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है। तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप a लिखें, उसके बाद प्लस लिखें, उसके बाद इक्वल लिखें और उसके बाद वैल्यू लिखें। तो ये दोनों ही वर्क सेम रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप ये लिखना चाहते हैं a इज इक्वल टू a, हम चलिए हम मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है a एस्टेरिक इक्वल टू 2। तो इस तरीके से भी वैल्यू असाइन की जा सकती है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, और ये डिफरेंट टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर थे। तो सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ वर्क करते हैं ये, चाहे वो प्लस हो, माइनस, स्टार हो, या डिवाइड का साइन हो, या फिर आपका एक्सपोनेंट का हो, तो उन सभी के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर को इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको करके देखना है। सभी को आप इंटरेक्टिव मोड में जाइए, पाइथन को ओपन कीजिए और प्रॉम्प्ट पर जाके ऑपरेशन परफॉर्म करके देखिए क्या आउटपुट आता है, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर की। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर जैसा नेम है कंपैरिजन, तो हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं वेरिएबल्स का, और रिलेशनल का मतलब रिलेशन बताता है, रिलेशन क्या होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कंपैरिजन ऑपरेटर में आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कभी भी एक नंबर की फॉर्म में आंसर नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या आप मैरिड हैं, तो आंसर या तो यस होगा या नो होगा, आंसर आपका 5 या 6 नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करेंगे, तो जैसे मैंने लिखा, थोड़ा प्रोग्रामिंग की बात करते हैं इसमें, a इज इक्वल टू 5 लिखा आपने, और b इज इक्वल टू आपने 6 ले, b को 6 असाइन कर दिया। अब आपसे कहा गया ये बताइए कि क्या ये दोनों बराबर हैं, इक्वल टू 6। तो अब इसमें आंसर या तो यस है या नो है। आप ये नहीं कह सकते कि आंसर 11 तो सम होगा उसका, तो आंसर या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पाइथन की टर्मिनोलॉजी में आंसर या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, और कुछ आंसर नहीं होगा इसका। तो ये इक्वल के लिए यहाँ पर जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख लीजिएगा इसको। तो ये तो था इसके लिए। और नॉट इक्वल टू के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों ही मेथड, दोनों ही तरीके से आप नॉट इक्वल टू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो ये है एंगल के अंदर, दूसरा एपिस्टोपिक मार्क के साथ, ये नॉट इक्वल टू। दोनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन का वही है जो मैथमेटिक्स में यूज़ करते थे हम, तो ये ग्रेटर देन है, और लेस देन के लिए लेस देन है। ये डिफरेंट सिम्बल्स थे, कंपैरिजन ऑपरेटर थे, और ये लेस देन इक्वल टू और ये ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आपको काम क्या करना है इसके साथ, आपको काम ये करना है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है, और पाइथन इंटरेक्टिव मोड में आपको ये परफॉर्म करके देखना है। जैसे आपने लिखा 5 इक्वल टू 6, तो आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू आएगा, ऑफ कोर्स ये फॉल्स है, 5 6 की इक्वल नहीं है, तो आंसर फॉल्स आएगा। इसी तरीके से अगर हम ये देखें यहाँ पर, इसका आंसर फॉल्स आएगा।
और इसके बाद अगर हम देखें प्रॉम्प्ट पर ही आपने लिखा 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि अगर इक्वल लेंगे तो अनइक्वल तो है ही। आंसर ट्रू या फॉल्स में होगा इसका। ट्रू और फॉल्स हम जानते हैं कीवर्ड्स हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए इसके अंदर कि आपने लिखा फॉर्म पर जाके इसी तरीके से 5 इज ग्रेटर देन 6, ऑफ कोर्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ऐसे ही आप लिख सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में आपने लिखा 5 इज लेस देन 6, बस, तो आंसर आएगा यस ट्रू, इट इज ट्रू, आंसर ट्रू आएगा। अब इसका डिटेल प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं, तो जब कंडीशंस यूज़ करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे इसको इफ़ स्टेटमेंट के अंदर और लूप के अंदर रिक्वायरमेंट जहाँ कहीं भी होगी इसकी। लेकिन यहाँ जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझाना है वो इसकी फंक्शनैलिटी को बताना है। तो अभी आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, समझिए कि आंसर किस तरीके से शो होता है और कंडीशन किस तरीके से चेक होती हैं। स्पेशली आपका ये याद रखिएगा कि कभी कभी ऑपरेटर्स में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए इन दोनों ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये इक्वल टू ऑपरेटर है, तो दोनों डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। इसी तरीके से ये पूछ लिया जाता है आपका कि अगर हम इन दोनों सिम्बल्स में क्या डिफरेंस है, तो ये मल्टीप्लाई के यूज़ होता है और ये एक्सपोनेंट के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि डिवाइड और मॉडुलो डिवीज़न में क्या डिफरेंस है, तो ये रिमाइंडर शो करेगा और ये डिवीज़न शो करेगा, ये सिंबल। तो इसी तरीके से तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऑपरेटर से। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात हुई। अब इसमें हम लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू को भी देख सकते हैं। हम मैथमेटिक्स में जो लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू ये सिंबल यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग में हमें ऐसा नहीं करना है। हमको इस सिंबल के लिए लेस देन इक्वल टू के लिए साइन यूज़ करना है और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए साइन यूज़ करना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पर जाके हम फिर से चलिए इसे चेक करते हैं। जैसे आपने लिखा 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो आंसर आना चाहिए ट्रू। इसी तरीके से अगर पूछा जाए आपसे 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो भी आंसर ट्रू ही होगा, क्योंकि 6 5 से बड़ा तो है ही। 6 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5, तो फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल होती है। इक्वल भी होता तो भी ट्रू ही होता आंसर, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन और इक्वल दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑपरेटर्स अपने इसके अंदर देखिए। अभी हमने इसके अंदर 3 ऑपरेटर्स पढ़े हैं। पहला पढ़ा आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड पढ़ा आपने असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड पढ़ा आपने कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और बाकी ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स है और मेंबरशिप ऑपरेटर्स है, इनको हम प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन को समझाना है, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर कहाँ किस कंडीशन में किस तरीके से यूज़ होते हैं। लेकिन जहाँ तक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात है, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात है या कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात है, इवन लॉजिकल ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटी को भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं आप इंटरेक्टिव मोड में जाके। तो ये था आज का वीडियो। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने जो आज सीखा वो ये था कि इसमें आपको सबसे पहले इंडेंटेशन क्या होता है, दूसरी हमने मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट किस तरीके से दिए जाते हैं, थर्ड हमने सीखा कि कमेंट किस तरीके से दिए जाते हैं, मल्टीपल लाइन और सिंगल लाइन कमेंट, और फोर्थ हमने वेरिएबल असाइनमेंट, और फिफ्थ हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखे वो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर सीखे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो अपने डाउट्स जो भी हैं इससे रिलेटेड वो नोट करके रखिएगा, और जब भी ऑनलाइन क्लास होती है तो इसमें पूछे जाएंगे, पूछ लीजिएगा तो वो और क्लियर हो जाएगा इसके बाद।